کے پکارا جاتا ہے، حالانکہ نام عبداللہ ہے، لیکن کیا پکارتے ان کو لقب سے؟ دو چادر والے صحابی۔ اب یہ دو چادر والے صحابی کیسے بنے؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ضرور سنیے اور اس پر سے بہت بڑا سبق حاصل کیجیے۔ ایک 17 سال کا نوجوان، حضرت عبداللہ جن کا نام، کتنے سال؟ 17 سال کا نوجوان، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان کے باپ نہیں تھے، چاچا تھا، ماں تھی، باپ انتقال ہو چکا تھا، یتیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پیش کی، عبداللہ ایمان لے آئے۔ 18 سال 17 سال کی عمر میں ایمان لے آئے، اور ان کے چاچا نے جب دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا باندھ دیا، کھانے سے بھوکا رکھ دیا، یہاں تک کہ ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن قربان جائیے اس عبداللہ پر۔ انہوں نے کہا چاچا تو چاہے میری جان لے لے، لیکن ایک بار میں نے محمد رسول اللہ کہا ہے، اب میں مر جاؤں لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑو۔ وہ چاچا مار مار کر تھک جاتا، اور تھک کر کے آخر وہ چاچا عجیز آ کر کہتا ارے بھتیجے بتا اب میں کیا کروں؟ بھتیجا کہتا کچھ نہیں کرنا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ چاچا پھر مارتا، نہیں اس محمد کے ساتھ نہیں، اس کا کلمہ پڑھنا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد حضور نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت عبداللہ مکہ میں تھے، حضور نے جیسے مدینہ میں ہجرت کی، یہ نوجوان 17 سال کا حضور کی غیر موجودگی میں، حضور کے عشق میں اتنا تڑپنے لگا، اتنا تڑپنے لگا کہ جس کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کاروبار کا ہوش، نہ رشتہ داروں کا ہوش، بس میرا آقا کہا ہے، میرا رسول کہا ہے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا وہ محبوب خدا کہا ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں یہی کہتا گھومتے تھے۔ تمام کفار مشرکین آئے عبداللہ کے چاچا کے پاس، تمہارا بھتیجا بیکار ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، وہ محمد محمد کہتا پکار رہا ہے، اس کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ پھر چاچا نے بہت مارا، بہت مارا، بہت پیٹا، لیکن کیا کرتے؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ سوار ہو جائے، اسے پھر دنیا جلائے، آرے چلائے، چھری چلائے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عشق ایسا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی یہ میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے نظر سے پلائے، وہ تاب آ گئی۔ اب وہ مار مار کر تھکا، لیکن قربان جائیے بچہ آتا ہے امی کے پاس، امی میں حضور کے بنا رہ نہیں سکتا، ان کے عشق نے مجھے اتنا بے قرار کر دیا ہے، اے امی مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے۔ امی کہتے بیٹا میں تو راضی ہوں، لیکن تیرا چاچا بڑا ہی ظالم ہے، وہ تجھے جانے نہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے میں چاچا سے اجازت لوں گا۔ اب آیا چاچا کے پاس، مجھے مدینہ جانا ہے۔ چاچا نے کہا ہرگز نہیں، نہیں میں جاؤں گا، اس رسول کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، ان کا عشق میرے دل میں، دماغ میں، بدن میں رچ بس چکا ہے، اس رسول کو دیکھے بغیر میں چین نہیں پاتا، مجھے مدینہ جانا ہے۔ اب چاچا کہتا ٹھیک ہے جاتا ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ تو تیرے باپ دادا کے جتنی پراپرٹی ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا کھیتی باڑی، سب میرے نام پر لکھ دے، میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں۔ اب عشق کے رسول، جہاں عشق کا معاملہ آتا ہے وہاں دولت دھن کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کو دیکھا جاتا ہے، ایمان کو دیکھا جاتا ہے، عشق کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ وہ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، الحمدللہ میں دنیا سے گیا مسلمان۔ سبحان اللہ۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور وہ بھی رسول سے عشق ہو جائے، اللہ کے محبوب سے عشق ہو جائے۔ بیٹے بھتیجے نے کہا لے لو، پورا لے لو، لیکن مجھے رسول کے پاس جانا ہے۔ اب چاچا نے کہا بیٹا یہ جو بدن پہ تو نے کپڑا پہنا ہے نا یہ بھی میرا ہے، اس کو بھی اتار دے۔ اب وہ بچے نے، 17 سال کے عبداللہ نے کپڑا اتار دیا۔ اب پورا برہانہ ہونے کے بعد
पेपर वगैरह जो भी चीज़ थी वो चीज़ से पूरे हिस्से को ढाक लिया शर्मगाह को, और वहाँ से दौड़ा दौड़ा अपनी अम्मी के पास आया। अरे मेरी अम्मी, मैंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपना जोड़ा तक उतार दिया, चाचा का पूरे प्रॉपर्टी चाचा के नाम कर दी। अरे अम्मी मुझे रसूल के पास जाना है। अम्मी ने जब बेटे को बरहाना देखी तो बिस्तरते मोहब्बत से आंखों से आंसू निकल आए। अम्मी कहते बेटा मेरे पास ये 2 दुपट्टे हैं, 2 चादर है, इससे अपने बदन को ढाक ले। वो 17 साल के नौजवान ने 2 चादर लिए, इसीलिए ये सहाबी को क्या कहते हैं? 2 चादर वाले सहाबी। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? 2 चादर वाले सहाबी। अब दोनों चादर लिए, एक लपेटा एक बदन पे लिया, और वो 17 साल का नौजवान मदीने मुनव्वरा को जाने निकला। तकरीबन 500-550 किलोमीटर का सफ़र है मक्का मुकर्रमा से। उस ज़माने में कोई साधन नहीं था। ये बेचारा इश्क रसूल में अकेला चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। शैतान से देखा नहीं जाता, शैतान रास्ते में आता है, दिल में वसवसा डालता है। ए अब्दुल्ला, उस रसूल के तो हज़ारों आशिक है, हज़ारों सहाबा है, वो तुझे कब पहचानेंगे? इतने भीड़ में तुझे कब पहचानेंगे? ये कहते हैं मुझे वो जाने ना जाने, मैं तो उनको जानता हूँ, मैं तो उनको पहचानता हूँ। मुझे वो पहचाने ना पहचाने, मैं तो पहचानता हूँ। इस मोहब्बत में निकल पड़े। कई अरसे के बाद जब पहुँचे तो रात के वक्त पहुँचे, और पहुँचे तो मस्जिद नबवी में पहुँचे। उस वक्त मस्जिद नबवी मुख्तसर तैयार हो चुकी थी, कच्ची। मस्जिद नबवी का रास्ता पूछते पूछते चले गए, बाजू में हुजूर का हुजरा था, मस्जिद नबवी के बाजू में। अब यहाँ से आगे बड़े गौर से सुनिए। अब जो हुजरा था तो रात के अंधेरे में दरवाज़ा खटखटाते हैं, खट खट खट। रात के अंधेरे में दरवाज़ा खोलने के लिए हुजूर के मुअज्जिन हजरत बिलाल कहते अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला हैरान व परेशान, इनको मेरा नाम कैसे मालूम, और इन्हें कैसे मालूम कि मैं ही आने वाला हूँ। बिलाल कहते हैं आओ अब्दुल्ला आओ, बैठो, ये देखो रसूलुल्लाह ने तुम्हारे लिए खाना भी रखा है, कपड़ा भी रखा है, चादर भी रखी है। क्यों? ईशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने मुझे कहा मेरा आशिक आने वाला है, मेरा चाहने वाला आने वाला है। ऐ बिलाल तू यही खड़ा रहना, और जब आएगा तो वो भूखा प्यासा होगा, उसे खाना भी खिला देना, उसके बदन पर कपड़ा नहीं होगा, ये कपड़ा भी दे देना, और ओढ़ने के लिए मेरी तरफ से ये कंबल भी दे देना। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात आने से पहले कही, इसको आप क्या कहेंगे बताइए? इल्म गए भी कहेंगे ना। अब अल्लाह ताला देना चाहे तो किसी माई कलाल की ताकत है कि रोके? कोई नहीं रोक सकता। और अल्लाह छीनना चाहे तो किसी माई कलाल की ताकत है कि दे दे? नहीं। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा बेदिल खैर। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अब अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह को वो इल्म दिया तो हमारी ताकत नहीं कि हम रोक सके अल्लाह को। अब अल्लाह के रसूल ने ये कह करके चले गए, अपने खानका में अपने घर में सो गए। ये बेचारा इतना खुश हुआ कि शैतान वलगला रहा था कि रसूल तुझे पहचानेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे रसूल ने तो इतना पहचाना कि मेरे पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी रखा, मेरे पास ओढ़ने कंबल नहीं तो कंबल भी रखी, मैं भूखा हूँ तो मेरे लिए खाना भी रखा। अब इसका इश्क और ज़्यादा बढ़ता चला गया। रात में खाना खाने के बाद अब ये बंदे को नींद कहाँ आती? कब फजर की नमाज हो, कब फजर की नमाज की आज़ान हो, कब रसूलुल्लाह आए और कब मैं उनकी मुलाकात करूं। तड़पते तड़पते मछली की तरह तड़पता रहा इश्क मुस्तफ़ा में। अब जब सुबह फजर में बिलाल ने आज़ान पढ़ी, ये बंदा पहली सफ में हाजिर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि हमारे आका फौरन आके मुसल्ले पर नहीं बैठते थे। तकबीर शुरू होती जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते, हुजूर का मकबरा बिल्कुल सामने था, दरवाज़ा खुलता, पर्दा हटता, हुजूर मुसल्ले पे आते, उसके बाद सहाबा इकराम खड़ा होते। इसीलिए हय्या अला सलाह के बाद खड़ा होने का हुक्म है। और कदकामतिस सला, इसका मतलब ये खड़े हो जाओ नमाज के लिए। कदकामतिस सला, खड़े हो जाओ नमाज के लिए। फिर इसके पहले क्या? बैठे रहो ना, इसके पहले बैठे रहो, यही मतलब हो ना, खड़े हो जाओ नमाज के लिए। बहरहाल साहबा का ये अखलाक था, हुजूर आते थे फिर साहबा खड़े होते थे, ये साबित है हदीस पाक से। अब फजर की नमाज के लिए हजरत बिलाल ने अकामत पढ़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे आका दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए, सीधे मुसल्ले पर नहीं गए। अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला से मिट्टी मारी, अब्दुल्ला से मोहब्बत से मिलते रहे। अकामत खत्म हो गई लेकिन रसूलुल्लाह हजरत अब्दुल्ला से ही मिलते रहे, बड़े प्यार से मिला।
मिलने के बाद अकामत खत्म हो गई, दोबारा अकामत पढ़ने का हुक्म हुआ, दोबारा अकामत पढ़ी गई, फिर न फजर की नमाज अदा कर दी गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल्ला तमाम सहाबा से कहा, ए सहाबियों, ये मेरा बड़ा ही प्यारा आशिक है, इसने बड़ी तकलीफें उठाई है मुझ तक पहुंचने के लिए, इसने अपना जान, अपना धन दौलत कारोबार सब कुछ मेरे नाम पर कुर्बान किया है। ऐ मेरे सहाबियों, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करना। और जब तक ये मदीना में है, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है। अब क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला मदीना मस्जिद नबी में रहने लगे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मस्जिद नबी की साफ सफाई चल रही थी, साफ सफाई करते 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 आपसे थोड़ी कुछ गलती हो गई। हजरत उमर जलील व कदर सहाबी है ना, उमर बिन खत्ताब, जिनको देख करके शैतान भी 70 कोस दूर भागता है। हजरत उमर ने जब देखा कि अब्दुल्ला से कुछ गलती हो गई, हजरत उमर ने अब्दुल्ला को डांट दिया। डांट देने के बाद इनका दिल टूट गया और एक सुतून से, जोहर का वक्त करीब था, एक सुतून से आप खड़े हो गए, मायूस हो गए। जोहर का वक्त हुआ, अकामत पड़ी गई। अल्लाह के रसूल ने सफ में देखा तो अब्दुल्ला नजर नहीं आते। अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो मेरा आशिक अब्दुल्ला कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि हजरत उमर ने डांट दिया, शायद उनको कुछ मायूस हो गए हो, शायद उनके दिल को ये बात लगी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशिक रसूल, सहाबी रसूल, खलीफा रसूल को मस्जिद नबी में डांट कर कहा, ऐ उमर, चाहे जिसको डांट लो, चाहे जिसको गुस्सा कर लो, लेकिन अब्दुल्ला को इसके बाद कभी गुस्सा ना करना, वो मेरा सच्चा आशिक है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद क्या मजाल है हजरत उमर की कि हजरत अब्दुल्ला को डांटे, कभी नहीं डांटा। अब वक्त चलता चला गया, चलता चला गया, जंग तबुक का मौका आया तो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के साथ जंग तबुक में भी चले गए। अब देखिए, जंग तबुक चूंकि ऐसी जंग थी कि जिसमें हर सहाबा के खेमे थोड़े जुदा जुदा थे, जुदा जुदा फासले पर थे, एक जगह नहीं थे। हुजूर का खेमा इधर तो अबू बकर का उधर, तो हजरत उमर का उधर, तो हजरत उस्मान का उधर, फैले हुए खेमे थे। उस जंग में हजरत अब्दुल्ला भी शरीक थे। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, आपने सुना होगा नाम, ये भी सहाबी रसूल है। ये रवायत करते कि जंग तबुक में रात के अंधेरे में मैं अपने खेमे में सोया हुआ था, अचानक मेरी नींद उचाट हो गई और मैं चाहा कि मैं रसूलुल्लाह के पास जाऊं और उनसे कुछ अर्ज करूं। चुनांचे मैं अपने खेमे से उठा, हुजूर के खेमे की तरफ बढ़ा तो देखा कि हुजूर खेमे में ही नहीं, खेमा बिल्कुल खाली। फिर मैं अबू बकर के खेमे के पास गया कि शायद उधर गए होंगे, वहां देखता तो अबू बकर भी नहीं, हुजूर भी नहीं। फिर मैं हजरत उमर के खेमे के पास गया कि वहाँ शायद ये गए होंगे, वहाँ गया तो वहाँ भी हुजूर नहीं। उस्मान गनी के खेमे के पास गया तो वहाँ भी हुजूर नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते कि मैं हैरान हुआ कि हमारे हुजूर गए कहाँ। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकला और नजर दौड़ा तो थोड़ी रोशनी नजर आई, थोड़ी रोशनी नजर आई, वहाँ पर भीड़ नजर आई। मैं दौड़ा दौड़ा चला गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, वहाँ पर हुजूर भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, कुछ सहाबा भी है और किसी को दफना रहे हैं। मैं करीब जाकर देखा तो वही 17 साल का नौजवान हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे, अपने मुबारक हाथों से उनके जनाजे को कब्र में रखा और अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगार आलम, मैं इसे महबूब रखता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। वो हजरत अब्दुल्ला है जिनकी जवानी हुजूर की मोहब्बत में काम आ गई और जब आप पर्दा भी कर गए, इंतकाल भी कर गए तो जंग तबुक के मौके पर इंतकाल कर गए। और रसूल ने एक बार दुआ की, अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। तो यकीनन अल्लाह के रसूल की जो दुआ है अल्लाह की बारगाह में कबूल है। जब ये दुआ की तो गैब से निदा आई, आने दो आने दो आने दो, आए मेरे महबूब, मेरे फरिश्ते भी आपके आशिक के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जो तेरे इश्क में मरता है वो मरता ही नहीं, तेरा आशिक है यहाँ और वहाँ भी बाकी। तो रसूल के ऐसे आशिक बनो कि कल बरोज़े क़ियामत में वो रसूल हमारे चेहरे को देखे, हमारे सूरत को देखे तो रसूल कहे उठे, ऐ अल्लाह, कैसा भी है, गुनाहगार है, खताकार है, बदकार है, लेकिन मेरा चहेता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। ऐसे बनिए। और साथ ही साथ रसूलुल्लाह ने जो चीज़ करने को कहा है उतना ही करिए।
जिस चीज़ से रुकने को कहा है उससे रुकिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। यही अगर हमने सबक यहाँ से लेकर गए तो हम ये समझेंगे कि हमने मीलादुन नबी से कुछ इल्म हासिल किया है। और रसूल की मोहब्बत और उस रसूल की पैरवी ये मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बशर करने की तौफीक अता फरमाए।